राइट। सो ओके, सो हमने लास्ट सेशन में क्लाइंट एक्सेस सर्विस का समझ लिया था थ्योरी, और बाद में वो सर्टिफिकेट और अपना वर्चुअल डायरेक्टरीज का भी रिलेटेड हमने देखा था सर्वर पे, करेक्ट, एक्सचेंज सर्वर 2016 के यस। कंसोल पे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे और उसके कंटिन्यूएशन करेंगे। मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर को ओपन कर रहा हूँ। एक्सचेंज एडमिन सेंटर, ओपन होने दे उसको। इसको ओपन हो रहा है, होने दो इसको। हेलो हेलो। हेलो हेलो। Yes, हेलो। yeah. So ओके now, ओके। yeah, it is, I think, okay. Now you can see my screen, right? यस। Okay. So now you already worked on server tab. Then we'll move to recipient. Then we'll come one by one. Okay. So recipients, like you are aware, in recipients we will see the mailbox, group, resource mailbox, contact, shared mailbox. All these comes under recipient tabs. Okay. यस। So
we will create a one mailbox, and we'll see how it what parameter is required and what is the property and all these things we'll try to here learn, right? So I am just clicking on the new. So here you can see here user mailbox, linked mailbox, Office 365 mailbox, correct? So Yes. user mailbox is normal mailbox, user mailbox. So it has the primary mailbox plus archive mailbox. If you enable archive, then it will be archive. Otherwise, it is not archive. So it is optional. Means you may enable or may not be enabled, depend upon our organization. But we can provide the archive as well, right? To keep our archive the old mailbox, right? Yes. Linked mailbox is something like that. I will tell you how it works. Linked means I have the XYZ forest and my AD account is created on the xyz.com, but I am hosting the exchange on another forest like abc.com, right? So it means, Means in yeah, okay, yeah, in two different forest account is created, na? exactly. So why they are using such a environment? Due to the some security reason, because authentication will happen in the xyz.com, because AD will authenticate, right? But Yes. mailbox will be hosted in the another forest like abc.com. So that's why there is some region people or some environment they will use this is the like this. So that mailbox is called as a linked mailbox. Or maybe some scenario they maybe have the two organizations, so two forests. So in that scenario also this situation will come linked. It is a very rare cases, but still people will or organization will use this such a type of linked mailbox. Okay. So Okay. Office 365 is the normal our exchange online. Okay, this is the three Okay. types. So now we will create only here user mailbox. Okay, not other. So I will create your name only Harshal, SHRS, right? This is spelling correct, right? Yes. Yeah. So here you are, it is asking me existing user also. If suppose I have already created the AD account, then I can select this. Yeah, existing, I can take anyone like that. If suppose I have created the in AD object, your object, then I can select from here. Otherwise, I can start creating AD plus exchange mailbox. Correct. Yes. So I am selecting new user because I am creating first. Means I don't have AD and exchange here. ठीक है. First name I will keep Harshal, and last name I will leave as it is. Sir, what is the initial means? Yeah, initial means like no, Mr., Mrs., or some any other Yes. options also we can give the initials. That is Acha. actually not using normally initials, but only you will use the uh, first name and last name. First. Suppose if I take a Mumbai, just I'm not taking your surname, but I can putting some Mumbai like that. Last name would be just for identifying. Or if you have any your last name also we can keep. I'm taking like that just. So here display. In SBI, most of the users means uh, most of the users name is Mohammed. So MD is Yeah, initial. yeah, would be like that. Yeah, that's right. Okay. And Okay. also somewhere doctor, some advocate, something like by Yes. initials, Yes. Yes. just they can identify designation also or something like that. That can be. Yes. And Okay. okay, actually I have put in initials, so I'll remove it. I don't require here. Okay. So display name would be first name plus last name. If I keep something last name also, automatically it will search. If suppose I'm last name I am putting example, I will take your Mumbai, right? So now it automatically see, you can see Mumbai, it is not correct. Again it is come under the initials only. I am trying to type in the last name. Okay, MUMBA Mumbai. So see, you can see display name and name would be automatically comes in a Harshal Mumbai. First name plus last name. What are you are putting in here? It automatically displays. You can type initial tech team. I will just you can I'll try to tech suppose just so it will automatically take it. You can see Harshal Tech Mumbai.
Understood, right? Here So means Harshal take. Then what will be my mail ID, sir? mail Means, ID would be here alias. What I am putting alias. This is the mail ID. Alias would be means mail ID. Harshal means Harshal at the rate Yes, domain name digitaltraining.in. means whatever alias then Yes, means my mail exactly. ID will. Yeah, I can put a first name dot last name also, or first alphabet dot last name, like that. Add that will come. Means okay, means if I type Harshal.pagar, then this mail ID will be there. Yeah. So because I will tell you what is the here behind. So normally it's supposed to come like first what I am putting the first name then last name it should come. But the thing is that people normally in organization they will not create a mail ID with the first name plus not. Sometimes they will put the employee ID, some code also. I think you aware about this, like employee Yes, ID. yes, 123, Yeah, well, 123, something like Harshal that. So 123. that's Hmm. why it will not take automatically first name and last name, because it will create again a issue. So that's why what you are putting in alias, then it will create accordingly that email address. Okay. Means automatically it will detect, na? Yeah, it will detect. One So or one yeah, one. I have put here Harshal, so it will create with the Harshal email. You can see now. Okay, now And I am in alias field, we don't have to put space, na? Harshal no means no no if I there put is no Harshal space. Pagar, Yeah, there is no space and there is no special character, nothing, just simple words. There should be not be space anything. It is the restrictions is there. means if I type Harshal Pagar only, then it automatically detect na Harshal.pagar or not. No, if you want to type Harshal Pagar, you can like that. PAGR, Okay. right? This way you If can. already, if this mail ID already exists, then Then that it will time. come with the one number one. Harshal dot Okay, okay. Pagar dot one. 1 2 3 something like that. Acha, It acha, will not acha. take duplication. So I am putting as per your Harshal. Here also I will last name I will take as a Paga. So same. And user login name also same, what alias would be. So I am giving, and password I am giving anything you can give password as per our requirement. Required password change this supposed to give when in production or environment, but you are working in the lab, then it is not required. It will again ask me to change the password. That's why I'm not selecting. More option, we'll see anything is there. So here we can if I am not selecting database, it will take the default automatically any database, but I will select here. So I want to select here database, which database I want to keep you, right? I will select this here. Okay, now I have selected, and you can see here create an in archive for this user. If you want, you can create the archive mailbox as well, or you can leave it. Normally how we will do, archive mailbox database would be different and primary mailbox database would be different actually, but for testing purpose I can create your archive on this same mailbox, same database. Understood, right? Yeah. Yeah, 1 minute, sir. yeah, Create sure. an for this user. Will Okay, no problem. create an on-premise archive means okay. Yeah, because we are now currently on premise, right? You are not online. So what is difference between in-place archive and This is the same in place means same on this thing. I mean in same primary mailbox will be attached to some different one mailbox. It will come means first is the primary, underneath it will come as a archive mailbox. So if I select here, this is I have to give the different this thing database. If I am not selecting, it will selecting the same where my primary mailbox is created. Understood, or I have to repeat again? no, sir, not understood. ओके फाइन, ठीक है. अभी नॉर्मली कैसा होता है, प्राइमरी मेल बॉक्स एक होता है और अपना आर्काइव मेल बॉक्स एक है, राइट? हाँ. तो अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो सेम
प्राइमरी मेल बॉक्स का जो जिधर डेटाबेस में है, अभी मैंने सेलेक्ट किया था राइट एक डेटाबेस, वही में प्राइमरी भी होएगा और आर्काइव मेल बॉक्स भी होएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, इफ आई कैन कीप, ये दूसरे मेल बॉक्स में भी रख सकता है इसको। अभी मैंने इस पे प्राइमरी किया तो अभी ऑटोमेटिकली यही इस पे ही वो आर्काइव भी होएगा अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो। मतलब ऑटोमेटिक, मतलब नॉर्मल हाँ मेल उस बॉक्स भी होगा और हाँ हाँ इन प्लेस आर्काइव भी होगा, क्रिएट एंड हाँ इन प्लेस आर्काइव सिलेक्ट किया तो। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। और ओनली अगर क्रिएट ऑन प्रेमिस आर्काइव किया तो ये नहीं, ये तो तुमको ये बाय किया डिफॉल्ट तो है क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट नहीं, इसको ये तो सेलेक्ट करना है। ये अगर सेलेक्ट करे तो आपको यहाँ आर्काइव पे, मिलेगा। यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको दूसरे डेटाबेस में रखने का, अगर आप यहाँ पे करना है तो। नहीं है तो फिर जो डेटाबेस में प्राइमरी मेल बॉक्स क्रिएट है वहां पे क्रिएट होएगा। मतलब दूसरे दूसरे के डेटाबेस, मतलब दो मेल डेटाबेस है उस। हाँ अभी नॉर्मली कैसा होता है, ये प्राइमरी मेल बॉक्स के लिए अलग डेटाबेस रहता है, आर्काइव के लिए अलग रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में सेम डेटाबेस में नहीं रखते। टेस्टिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट नॉर्मली कैसा होता है, अभी आर्काइव का कैसा डेटा ज्यादा रहता है राइट, प्राइमरी का हाँ कम रहता हाँ है। हाँ क्योंकि ओल्ड डेटा बहुत 5 साल 10 साल का आर्काइव में रखेगा तो कितना डेटा बढ़ेगा, फिर परफॉर्मेंस इश्यू आएगा ना तुम्हारा। हाँ आर्काइव प्लस और प्राइमरी भी रहेगा तो मीनिंग क्या हुआ, एक ही डेटाबेस में परफॉर्मेंस इश्यू आएगा क्या, नहीं आएगा? हाँ बराबर। क्योंकि मीनिंग हमारा वही है कि ओल्ड डेटा को हम आर्काइव इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा मेल बॉक्स का परफॉर्मेंस इश्यू नहीं आए, राइट। क्या? 80 GB मेल बॉक्स कंटेंट अगर लोड हो रहा है तो इश्यू तो आएगा, 10 GB के लिए और 80 के लिए टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा? हाँ हाँ तो हमारा इंटेंशन क्या रहता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आर्काइव मेल बॉक्स डिफरेंट ही रहता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आर्काइव मेल बॉक्स बोल के अभी इसको रीलेम अगर करूंगा मैं मेल बॉक्स डेटाबेस को आर्काइव मेल बॉक्स, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो मेरा आर्काइव मेल बॉक्स का डेटाबेस अलग रहेगा और प्राइमरी मेल बॉक्स का अलग रहेगा। अभी एक ही में आएगा अच्छा। ये, अगर मैंने नहीं सिलेक्ट किया तो। समझ गए? हाँ हाँ। ठीक है, मैं ये सेव कर रहा हूँ। क्लाउड बेस में वो। क्लाउड अच्छा। बेस में नहीं, अपने को क्लाउड बेस हमारा नहीं है ना अभी। ये क्लाउड मतलब अच्छा। एक्सचेंज ऑनलाइन अगर है तो, अपना एक्सचेंज ऑनलाइन अभी नहीं ओ है। 365 वो 365 हमारा हाइब्रिड है सर। तुम्हारा हाइब्रिड है क्या? तो तुम लोग हाँ। क्या करते, क्रिएट करके माइग्रेट करते क्या, क्या करते एक्चुअली? मुझे ये आइडिया नहीं क्या करते एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग मालूम है, हाइब्रिड में डायरेक्ट हाँ ऑफिस 365 में नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो हाँ वो हाँ क्या करते हैं, आपका मेल बॉक्स जब ये ऑनबोर्डिंग होता है ना यूजर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसका एडी हाँ ऑब्जेक्ट और एक्सचेंज मेल बॉक्स ऑन प्रेमिसेस में करते, एक ही सर्वर रहेगा वो एक्सचेंज 2016, क्योंकि सिर्फ वो लिंक हाँ करने के लिए। तो जैसा ही वो होगा तो एडी कनेक्ट से क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा एडी ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब सिंक होएगा, एट्रीब्यूट सिंक होंगे कहाँ पे, क्लाउड पे। 30 मिनट्स में उसका सिंक साइकिल 30 मिनट्स का रहता है, एडी अजूर एडी कनेक्ट का। तो फिर वहां पे एक टाइम सिंक हुआ ना, वो माइग्रेट करेंगे ये लोग तुम्हारा किधर, क्लाउड पे। फिर माइग्रेट के होने के बाद लाइसेंस असाइन करेंगे, फिर वो मेल बॉक्स एक्सचेंज ऑनलाइन बन जाएगा। बट सर, इसका वो हम कब वो कब पढ़ेंगे हम, मतलब हम उसका इसके बाद वो प्रोसीजर? पढ़ेंगे, इसके बाद ये अच्छा। कंप्लीट हुआ ना, ये समझ में आएगा तो फिर एक्सचेंज ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा। ओके। ओके, तो अभी अभी ये आपका क्रिएट हुआ दिख रहा है आपको यहाँ हाँ पे, हाँ। तो हम इसका थोड़ा सा हाँ। प्रॉपर्टी देखेंगे, एक मिनट, इसको एक्सचेंज का एप्लीकेशन बहुत सेंसिटिव रहता है। ये थोड़ा रिस्टार्ट हो, ओपन होने, ठीक है। तो मैं आपका हर्षल को ओपन करता हूँ, हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। अभी अपना जनरल में तुम्हारा नाम, इनिशियल, लास्ट नेम, नेम, डिस्प्ले नेम, अलियास क्या है वो वगैरह वगैरह आया, ठीक है। यूजर लॉगर नेम वगैरह आया, यूजर लॉगर नेम और अलियास सेम रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये अच्छा। ऑप्शन हाइड फ्रॉम एड्रेस, हाइड मतलब ये अगर तुमको कॉन्टेक्ट्स को हाइड कराना है आउटलुक कॉन्टेक्ट से, मतलब कोई सर्च नहीं कर पाना चाहिए तो टेम्परली तुम इसको हाइड कर सकते। तो गैल जो है, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट जो होता है ना, उससे ये दिखेगा हाँ नहीं, ठीक है। और मोर हाँ ऑप्शन में कुछ है क्या, देखेंगे अभी। मेल बॉक्स डेटाबेस किस पे है, ये नाम है मेल बॉक्स अंडरस्कोर हाँ। डेटाबेस में। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है, यूजर्स में गया, ये ओयू जो बोलते हैं पूरी ये एडी का। यहाँ से नहीं चेंज हो सकता डेटाबेस? नहीं नहीं चेंज होता अभी यहाँ से नहीं चेंज होएगा। वो कहाँ से होगा फिर? हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ हाँ। आपको।
वो बताएगा। ठीक है, ये यूजर का प्रॉपर्टीज है। अभी मेल बॉक्स यूसेज, मतलब अभी तो हमने किया है, ये अभी तक हमने लॉग नहीं किया, उसके लिए ये बोल रहा है लॉग्ड इन, लास्ट लॉग इन का स्टैम्प नहीं बना। और तुम्हारा यूसेज हाँ कितना है, 2 GB का अपना स्टोरेज है, 0 बाइट्स हमने यूज किया, अभी तक कुछ भी नहीं यूज किया। नहीं। ठीक है, ये बाकी के ऑप्शंस है। और अपन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ओवरराइड करना है, अगर ये वीआईपी का यूजर है तो मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, इसको 10 MB 10 GB दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओवरराइड करना है, ये डेटाबेस का कोटा अप्लाई हो रहा है अभी एज ऑफ नाउ, बट मेरे को ओवरराइड करना है। कोई ऐसा यूजर है, वीआईपी यूजर है, कुछ डायरेक्टर है, तो उसको वो राइट, मैं पूरा डेटाबेस का चेंज नहीं करूंगा, बट ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर मेल बॉक्स हम वो राइट करेंगे डेटा। यहाँ पे 10 GB रखेंगे, 5 GB कुछ भी रखेंगे इसके पहले, समझ गए ना। और यहाँ पे डिलीट आइटम का डेज क्या है, 14 डेज, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस का जो हम सेट किया रिटेंशन, वहां से ऑटोमेटिक आ गया वो। ठीक है, तो ये उसका मेल बॉक्स यूसेज का डिटेल। अभी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में नॉर्मली स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये कंट्री, ये नॉर्मली कॉन्टेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये अपडेट हमने नहीं किया। अगर एडी में अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा टाइटल क्या है, कुछ भी अपन अपडेट कर सकते, टेक टेक टीम या समथिंग लाइक दैट, या डिपार्टमेंट क्या रहेगा, टेक्निकल टीम ही रहेगा, या जो भी आपका, ऐसा कुछ भी आप उन्हें को दे सकते। ठीक है, मैनेजर आपका हाँ कोई दूसरे आपको ब्राउज करा के, जो भी आप किसको रिपोर्ट करते हैं, अगर समझ लो एक्सचेंज एडमिन एक एग्जांपल, तो आप ये अपडेट कर सकते, तो वो वहाँ पे आपका आउटलुक कंटेंट में मैनेजर भी दिखेगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर डालना है, रिपोर्टिंग वगैरह कुछ सर, ऐसा। अगर सपोज ऑलरेडी ईडी वाले करते हैं ना, उनके नहीं, तरफ से, हाँ, तो वो इधर रिफ्लेक्ट होता है क्या हाँ, इधर? ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं आप यहाँ पे एडी में करूंगा ना, ऑटोमेटिक हाँ रिफ्लेक्ट, हाँ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ये सब वो लोग एडी वाले करते हैं, आपको सिर्फ मेल बॉक्स को एनेबल करना है, आपका काम सिर्फ मेल बॉक्स एनेबल करना है, ये आपका काम नहीं है, बट आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। अभी हम ईमेल एड्रेस में आया, ईमेल एड्रेस यस harshal.pagar आया ना, डिजिटल ट्रेनिंग डॉट। यस यस। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये प्राइमरी एचटीटीपी एड्रेस बन गया। और वो सर, वो थोड़ा आइडिया दो ना सेकेंडरी एड्रेस का, हाँ, थोड़ा हाँ, वो क्या है? मैं बताता हूँ, एक मिनट। अभी अभी कैसा रहता मैं समझाता हूँ आपको। अभी देखिए, प्राइमरी मतलब जब भी तुम सेंड करते मेल किसी को भी, वही ईमेल एड्रेस वहां पे जाएगा, harshal.pagar@digitaltraining.in जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हाँ आप मल्टीपल 1 से 2 क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको रिसीव करना है मेल, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये एसएमटीपी एड्रेस अभी समझ लो दूसरे का, अभी ये और एक, ये एक्चुअली क्या है, इसका इंटीग्रेशन मैंने ऑफिस 365 से भी किया था, उसके लिए ये भी स्टैंपिंग आपका किया है उसने ऑटोमेटिक, एक सेकेंडरी। तो अगर समझ लो ये ईमेल एड्रेस, ये अपना एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रेनिंग डॉट डॉट मेल ऑन माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर एग्जांपल अभी सेम ईमेल है ना, तो इसको समझ लो वहां पे तुम्हारा ये अगर है, ठीक है, ये हर्षल हुआ, राइट। तो सेकेंडरी हाँ। शिफ्ट क्या काम में आता, मैं बोलूँ क्या, रिसीव करने के लिए मेल आपको, मतलब इस पे अगर मैं भेजूंगा तो ये डोमेन के नाम पे भी harshal@digitaltraining आपको मेल आएगा, बट जब तुम रिप्लाई करेंगे तो ईमेल एड्रेस यही रहेगा तुम्हारा, रिप्लाई मतलब एड्रेस। सपोज यूजर ने मुझे वो दूसरे मतलब आउट ऑफ डोमेन से भी मेल कर रहा है, नहीं तो फिर इनसाइड डोमेन से भी कर रहा है, harshal@digitaltraining.net, तो उस मेरी आईडी पाएगा, यही उसका एग्जैक्टली, यही है बात। हाँ। तो अगर ये दूसरा, ये क्लाइंट दूसरा है, समझो ये एक क्लाइंट है ऊपर वाला, इसको आपको मेल कर रहा है, आया harshal.pagar@digitaltraining.in से, और दूसरा एक क्लाइंट आप एग्जांपल पकड़ कर चलो, ये भी ईमेल एड्रेस है harshal@digitaltraining.mail.on.microsoft.com, ये भी एक दूसरा क्लाइंट है। ये जब ये ईमेल एड्रेस पे भी अगर आपको मेल कोई कर रहा है, उसको पता है आपका, आपने दिया दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, तो आपको मेल आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, आप रिप्लाई उसको करेंगे ना, तो रिप्लाई एड्रेस ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, नीचे वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी प्राइमरी एसएमटी एड्रेस एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते, प्रॉक्सी सेकेंडरी एड्रेस मल्टीपल हो सकते,
तुम्हारा रिप्लाई एड्रेस है एक ही होएगा, दो नहीं होएगा, समझ गए? और सपोज उस सेकेंडरी में कुछ भी दे सकते हैं क्या हम, मेल हाँ, आईडी सेकेंडरी में ऐसा? कुछ भी दे सकते हैं। अभी समझ में, अभी हर एक सेकेंडरी ऐड कर, आप जो भी कुछ भी बोलो। अभी देखो, आपको ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे मैंने अभी क्या ऐड करना है आपको, अगर आइडिया है तो बोलो, मैं वो ऐड करके ट्राई तुमको अंडरस्टैंड क्लियर कराने के लिए। हर हर मतलब हर डोमेन तो हाँ, कुछ सेम ही भी दे, रखना पड़ेगा ना, कुछ डिजिट? भी नहीं, कुछ भी डोमेन ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा और एक डोमेन है समझ लो, @test.com, मतलब दूसरा ये डिजिटली बोल के नहीं, कुछ भी दूसरा डोमेन, अभी इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। आया? तो फिर दूसरे डोमेन से कैसे आएगा सर टेस्ट.com? हाँ मतलब कुछ हाँ, वो तो मतलब दूसरे अगर, डोमेन का ये एग्जिस्ट करेगा ना, ये एक्सेप्टेड डोमेन में रहेगा ना अपना। अच्छा हाँ, अब ये हम यहाँ पे एक्सेप्टेड डोमेन में डालेंगे उसको, कि मेल रिसीव करने के लिए। ऐसा मतलब यहाँ सिर्फ ईमेल एड्रेस डालने से नहीं, उसको हम बोलेंगे एक्शन सर्वर को, ये डोमेन से आता है तो मेरे मेल्स को एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर। वो एक्सेप्टेड डोमेन में यहाँ पे मैं बताऊंगा तुमको कैसा डालना है। हाँ मैं लिख लिया था वो कैसे करना है। हाँ हाँ, चलेगा। मैं वो जब भी यहाँ पे आएगा उसका क्लास, अपन वहाँ पे देखेंगे। मतलब ऐसा ही डालने से नहीं आएगा, ये test.com हाँ, पब्लिश रहेगा, इसका एमएस रिकॉर्ड रहेगा, इसको हम यहाँ पे, वही मैं सोच रहा। हाँ वैसा नहीं आएगा। मतलब मेरा पॉइंट बोला, दूसरा कंपनी का अभी अभी कैसा होता है ना, कहीं कहीं पे एक से दो क्लाइंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट? उसका ईमेल एड्रेस अलग है, डोमेन अलग है, आपका भी ईमेल एड्रेस दूसरा, दो क्लाइंट को कर रहे हैं, तो आपको एक ही मेल बॉक्स में दो लोगों के मेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉक्सी एड्रेस ऐड करते हैं। इसको हम सेकेंडरी एड्रेस या प्रॉक्सी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और आप देखो। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? मतलब अभी मैं विप्रो में भी हूँ, हम्म, और मतलब एसबीआई का भी, दोनों मेरे मेल आईडी है। सपोज मेरे विप्रो मतलब एसबीआई के मेल आईडी पे आ रहा है, मैं इधर विप्रो का भी मेल आईडी डाल रहा हूँ, तो विप्रो के भी इस पे आएगा? ऐसा कुछ रहता है क्या? कर सकते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं। मतलब वो हाँ दोनों का क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट चाहिए कि ये तुम्हारे एक्शन। अभी जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा, एसबीआई पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या है, हाँ एसबीआई के मेल बॉक्स पे इप्रो से जो ईमेल एड्रेस पे मेल आते हैं, यहाँ पे एसबीआई के अकाउंट में आना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाह रहे, करेक्ट ना? हाँ हाँ। हाँ, तो वो कब होएगा, एसबीआई वाला टीम जो है, टेक्निकल टीम अलो करना चाहिए हमारा विप्रो के ईमेल एड्रेस को। वो बोलना चाहिए कि विप्रो पे जो भी मेल्स आते हैं मेरे मेल बॉक्स में डिलीवर होना चाहिए। वो जब भी अलो करेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंजेस करना पड़ेगा, वहां पे इसके एक्सचेंज सर्वर पे wipro.com को एक्सेप्टेड डोमेन में ऐड करना पड़ेगा, जब भी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा मैं वो समझाऊंगा, एक्सेप्टेड डोमेन कहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे तो वो इसका। नहीं, सपोज वो कहाँ पे ऐड, मतलब एक्सेप्टेड डोमेन, तो डोमेन ऐड करेंगे ना, और हम्म, वो मेल आईडी का मतलब सेकेंडरी में डालना पड़ेगा कि इधर विप्रो का करेक्ट फिर? करेक्ट, हाँ हाँ, सेकेंडरी में डालना पड़ेगा। प्राइमरी तो तुम्हारा एसबीआई करेगा, सेकेंडरी विप्रो रहेगा। क्योंकि तुम्हारे अच्छा को मतलब, सेंट जब करते तो एसबीआई का ही रहना चाहिए ना, विप्रो का तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तो एसबीआई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विप्रो के लिए तो सेकेंडरी है, इट इज अ सेकेंडरी हाँ हाँ पार्ट। प्राइमरी क्या है, वो प्राइमरी तुम्हारा कंसर्न है, क्लाइंट है एसबीआई। सेकेंडरी जो हाँ, है, सिर्फ तुमको मेल आना चाहिए, रिप्लाई का कंसर्न नहीं है तुम्हारा, रिप्लाई एसबीआई का चाहिए, करेक्ट ना? सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यस। तुमको मेल आना चाहिए कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, बट मेरा कंसर्न मेन है एसबीआई, उसके लिए मैं उसको प्राइमरी। बट तुम ऐसा, तुमको ऐसा कर सकते, प्राइमरी एक, सेकेंडरी कितना भी रख सकते। देखो यहाँ पे सेकेंडरी में क्या लिखा है, यू कैन ऐड, चेंज और डिलीट एन ईमेल एड्रेस associated with this user. The user primary email address is displayed in a bold type, but they all receive email sent to any address in this list. मतलब इस जो भी आपको मेल इस पे आएगा, एड्रेस पे भेजिएगा आएगा, बट जो प्राइमरी रहेगा एक ही रहेगा, वो बोल्ड एसएमटीपी पे रहेगा। अच्छा। प्राइमरी ऑलवेज ओनली वन। ठीक है, क्लियर? हाँ ओके, यस। तो अभी मेल बॉक्स फ्यूचर अपने को, अभी मेल बॉक्स फ्यूचर में क्या है, पॉलिसीज रहते हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या करना है। फोन एंड वॉइस नहीं, लॉग नहीं किया बोल के बोल रहा है। ये डिफरेंट शेयरिंग पॉलिसी डिफॉल्ट ही है अपना, कुछ भी नहीं है। रोल असाइनमेंट पॉलिसी भी डिफॉल्ट है। रिटेंशन पॉलिसी जो अपना प्राइमरी टू आर्काइव अभी तक डिफॉल्ट ही, हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया, जब कस्टम करेंगे तो अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट ही पॉलिसी। एड्रेस बुक पॉलिसी हमने कुछ अलग सा बनाया नहीं, जो डिफॉल्ट है वही है, अलग सा मतलब गैल वो जो एड्रेस बुक पॉलिसी अपना इसमें क्या आता गैल है जो सर? ग्लोबल एड्रेस लिस्ट जो हाँ बोलते हैं हम। हाँ, आना चाहिए या नहीं हाँ, ऐसा? आना नहीं चाहिए वो। हाँ और अपना यहाँ पे फोन एंड वॉइस फ्यूचर, ये
अपने को जो वॉइस यूनिफाइड मैसेजिंग का हमारा यहाँ पे नहीं है, हमने रोल इंस्टॉल किया बट अभी तक कॉन्फ़िगर कुछ नहीं किया, उसको एनेबल करना है, हाँ डिसेबल करना है वो। और मोबाइल डिवाइस पे आपको एक्टिव सिंक एनेबल करना है या डिसेबल करना है। एक्टिव सिंक मोबाइल डिवाइस के लिए काम में आता है, अगर एक्टिव सिंक डिसेबल करेंगे तो मोबाइल डिवाइस पे आप आउटलुक नहीं एक्सेस कर पाएंगे, करेक्ट। यस हम्म, तो वो ओवा भी अपने को कोई कोई रहते हैं ना, वेब ब्राउजर से ओवा नहीं एक्सेस करना, कुछ सिक्योरिटी रीजन, तो वो भी हम डिजेबल कर सकते हैं। ये फ्यूचर्स में आता है, कौन सा एनेबल करना है, कौन सा एनेबल डिजेबल करना है, फ्यूचर है। जैसा ईमेल कनेक्टिविटी में आउटलुक वेब ऐप ये भी है, ईमेल कनेक्ट डिजेबल करना है या एनेबल करना है। आई में आप एनेबल करना है, डिजेबल करना है, फ्यूचर है ये भी, अभी डिजेबल। पॉप 3 डिजेबल करना है, एनेबल करना है। मैपी, ये सभी एक एक अलग अलग फ्यूचर्स है, ठीक है। तो वो हिसाब से अपने सर। को एनेबल सर वो डिजेबल। मेल मेल फ्लो में क्या था वो नीचे मेल फ्लो? हाँ, एक मिनट, नीचे जा रहा हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ये ना, हाँ, यहाँ पे हाँ मेल फ्लो में फॉरवर्डिंग वगैरह आता है, अपन देखेंगे। ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एनेबल हाँ फॉरवर्डिंग का पता है ना आपको। जैसा ये मेल बॉक्स को जो भी मेल आएंगे ना, किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। मतलब आप छुट्टी पे है, राइट, हाँ आपका मेल्स आते, फिर आप रीड नहीं कर सकते, रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, आप किसी और को भी एक मेल बॉक्स को फॉरवर्ड करें तो क्या हो जाएगा, आपको जो भी मेल्स आएंगे ना उसको फॉरवर्ड होंगे, और आप एक कॉपी भी रख सकते हैं आपके खुद के लिए। डिलीवर मैसेज टू बोथ फॉरवर्डिंग एड्रेस एंड मेल बॉक्स, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग, सिंपल। अच्छा दोनों मेल आईडीज पे आएगा हाँ हाँ, अच्छा। सेम अपना कॉल फॉरवर्डिंग बोलते हैं ना, ये एक मोबाइल डिवाइस बंद है तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए वैसा, ठीक है। और तो ये, रिसिपिएंट लिमिट? हाँ, लिमिट मतलब कितने आपको रिसिप्टेंट्स को लिमिट कराना है। ये एक दो, अभी दिस बॉक्स स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिप्टेंट अलाउड ऑन दी टू सीसी एंड बीसीसी लाइंस ऑफ एन ईमेल मैसेज सेंड बाय द यूजर। मतलब टू में कितना होना चाहिए, सीसी में कितना होना चाहिए, बीसीसी में, यहाँ पे लिमिट अगर सेट करना है तो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अभी भेजने वाला कितने रिसिप्टेंट रखता है किसको पता है, राइट। कभी कभी हाँ टू में बराबर। सीसी में बहुत सारे रखते हैं ना, आपका टेक्निकल टीम है हाँ तो आपको 1 से 4 लोग रख सकते हैं, राइट। मैनेजर भी रहता है, कभी कुछ भी रहता है, तो उसके लिए ये लिमिट सेट करना नॉट, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ है आपका ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशन, देन यू कैन सेट इट, नो इशू, ठीक है। हाँ तो ये ऐसा है, अपन इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। डिलीवरी, मैसेज रिस्ट्रिक्शन का साइज रिस्ट्रिक्शन है, अटैचमेंट या कुछ डिलीवरी, ये सब अगर अपने को रिस्ट्रिक्शंस करना है तो इसको ओपन करके देखेंगे थोड़ा सा। हाँ हमारे इधर है वो 5 MB के ऊपर फाइल अटैचमेंट हाँ जा नहीं सकता, हाँ, ऐसा है एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्शन है। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, सेट मैक्सिमम साइज फॉर मैसेज सेंड एंड रिसीव्ड बाय दिस मेल बॉक्स, सेंड कितना, रिसीव कितना, नॉर्मली 5 MB 10 MB का रहता है अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का। नहीं तो क्या, फिर हाँ 100 100 MB भेजना शुरू करेंगे लोग, फिर वो तुम्हारा मेल बॉक्स प्रोसेसिंग बहुत कंज्यूम करेगा, इश्यू आएगा। तो ये सेट आप कर सकते हैं। ये वन, मतलब इधर 5000 KB डाल देने का। हाँ, 5000 KB अपन डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे 5000, 5000 50,000 वाली, रिसिपिएंट मैसेजेस में मतलब? दोनों रिसीव्ड एंड सेंड का है। अच्छा रिसीव, और अच्छा हाँ ऊपर सेंट मैसेज और रिसीव्ड मैसेज, क्योंकि रिसीव का भी हाँ एक लिमिटेशन कर सकते, राइट। तो ये हाँ, अपना फ्यूचर और रिस्ट्रिक्शंस का है, किस तरह क्या अपने को करना है। इसमें भी आप डिलीवरी में भी ऑप्शंस है, क्या क्या अपने को यहाँ पे अपने को एक 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 जो भी चीजें है अपने को सेटिंग कर सकते हैं। ये मेल बॉक्स के रिलेटेड है। यहाँ पे एक्सेप्टेड मैसेज फ्रॉम ऑल सेंडर्स, या कभी कभी होता है ना, कोई स्पेसिफिक वीआईपी रहेगा तो ये लोगों से ही अपने को मेल आना चाहिए, सब लोग कोई भेजेगा तो रिजेक्ट होएगा। अभी जैसा वीआईपी या डायरेक्टर हाँ रहेगा, सीईओ रहेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका कुछ, जिसको जिससे मेल आपने उसको आना चाहिए वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे बाकी के लोगों से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मैसेज, बट नॉर्मली अच्छा ऑल मतलब सेंडर्स रहता इनसे है। आएगा मतलब। हाँ, अच्छा
एग्जैक्टली, बट नॉर्मली आलसी रहता है, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा, मेल बॉक्स का क्या मतलब होगा फिर। जैसा हाँ। अपना मोबाइल फोन है, सबके कॉल्स आते हैं राइट, किसी का स्पेसिफिक का आएगा, फिर कभी कभी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना किसी का भी। तो दैट्स वाई, अभी जैसा कि तुमने सीईओ को कुछ कंप्लेंट करे लिखना है कुछ, तो जब अगर मेल ही वहां पे ब्लॉक करके रखा आपका, तो उसका मैसेज ही, तुम्हारा मैसेज उसके पास पहुंचेगा ही नहीं, करेक्ट। तो उसके लिए हम्म। नॉर्मली रिकमेंडेड ऑल सेंडर्स ही रहता है, बट अगर कुछ है पॉलिसी तो देन ये पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अपन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे इधर तो नहीं शायद, क्योंकि मेरे से अभी गलती से मेल उनको डायरेक्ट भेज दिया था उनका। हाँ अभी हाँ नए आए हैं ना, हाँ तो हाँ मैंने हाँ उनको भेज दिया था, उनका रिक्वेस्ट आया था, मतलब उनके पीए ने, पीएस ने रिक्वेस्ट किया था, पर्सनल सेक्रेटरी ने। और हाँ उधर उसने क्या किया, जो है ना, क्या बोलते हैं, सीईओ, मतलब क्या, एमडी हाँ हाँ एसबीआई का, हाँ हाँ। उसका नंबर दे दिया। तो अच्छा। मैंने डायरेक्ट उसको कॉल किया। हाँ तो हाँ उसको पूछ रहा था, हाँ आपका मतलब डेटा पहली मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी में आपका बैकअप चाहिए, तो आपका डेटा के चांस, लॉस के चांस हो सकते हैं, हाँ आप हाँ। कंफर्मेशन दीजिए। ओके। तो भड़क गया, आप हम्म। किससे बात कर रहे हैं मालूम है क्या? ऐसा हाँ, अच्छा बोलता। अच्छा अच्छा, गलत, ओके। होता है कभी कभी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ। कभी कभी क्या है, अपने को मेल आईडी से क्या उसका समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। आजकल तो वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, डेजिग्नेशन भी आता है ना, क्या है, टेक्निकल टीम का है, हाँ। डायरेक्टर है, सीईओ, वो अभी दिख रहा है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर भी कभी कभी मिस्टेक होता है, ऐसा इश्यू नहीं है, वो कुछ हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। और अभी, वो हाँ हमारे बोलो। इधर कैसा है सर, डीएल क्रिएट हुए, मतलब हम ब्रॉडकास्ट करते डेड हैं ना डेड। मॉर्निंग को। हाँ 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 हाँ। तो डीएल से क्या होता है, अगर उस बीसीसी में हम डाल देते हैं तो सब ये पूरे एम्प्लॉयर्स को मिल जाता है। राइट। और रिस्ट्रिक्शन कहाँ से लगाते हो, मतलब अगर सपोज कोई कोई भी नॉर्मल यूजर रहेगा, वो भी कर सकता है ना मेल, फिर उस डीएल बीसीसी से में ना, डाल देगा तो पूरे। अपना डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप से ना, वहाँ पे हाँ रिस्ट्रिक्शंस हाँ आता है वो। ना, हम जब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। आप अलाउड अच्छा। ओनली कौन सेंड करना है उसको अलाउ कर सकते हैं, उसको बाकी मुझे लोगों लगा को इधर ही कुछ होगा। नहीं। यहाँ पे नहीं, ये यूजर मेल बॉक्स है। अपन डिस्ट्रीब्यूशन में अपन डीएल में क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पे देखेंगे। ये अपन यूजर रिलेटेड उसका हाँ हाँ सभी डिस्कशन कर रहे हैं। अभी रहा अपना मेंबर ऑफ मतलब आप मालूम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का अगर अपन डालते हैं तो यहाँ पे मेंबर दिखेगा वो। आप एक एम्प्लॉय के ग्रुप के मेंबर है, जैसा नॉर्मल कॉमन कम्युनिकेशन का, यहाँ पे जैसा ही वो ऐड करेंगे वहाँ पे एडी ग्रुप से, तो यहाँ पे आपका पॉपअप होएगा, जो भी ग्रुप में तुम रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, यहाँ पे दिखेंगे, एक से दो ग्रुप रहेंगे तो। समझे ना ये। हाँ। और यहाँ पे जो ग्रुप, जो डीएल ने तो जो आते, सपोज ने तो माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप आते, उनमें हमारे एल टू वाले क्या करते हैं, मतलब यहाँ से भी वो चेंजेस कर सकते हैं ना, अगर नहीं, किसी को रिमूव करना है। हाँ, नहीं, रिमूव यहाँ से नहीं कर सकते आप, ये यहाँ से करना पड़ेगा। एडी से मैं बताता हूँ तुमको, एडी ये से। सिर्फ, हाँ एडी से यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले, यहाँ पे तुमको एक्सेस ही नहीं दे रहा, एक मिनट मैं तुमको बताता हूँ कहाँ से अपने को करना है। DSA.MSC, यहाँ से सिर्फ वो डिस्प्ले होएगा कौन से मेंबर्स है, मगर ऐड रिमूव करने का यहाँ से ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ पे तुम्हारा हर्षल, फॉर एग्जांपल हर्षल, अपने तुम्हारा ये एग्जांपल अपन सर्च करेंगे। ठीक है, एच और हर्षल, ठीक है, ये हाँ। तुम्हारा प्रॉपर्टी एडी का है, हाँ, ये एक्सचेंज का नहीं हाँ। है। एडी का कहाँ पे है अपना ग्रुप मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ। यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ ग्रुप पता नहीं मैं क्रिएट किया, जस्ट ऐसा ट्राई करता हूँ कुछ है क्या। ग्रुप पॉलिसी है, सिक्योरिटी ग्रुप कुछ है क्या, आई डोंट नो। हाँ, अरे यहाँ पे सिक्योरिटी, ये सब ऐसे कुछ ग्रुप्स है। तो यहाँ पे मेरे को जो भी तुम्हारे ग्रुप्स रहेंगे ना, यहाँ पे ऐड ऐसा करें ना, अगर एक मिनट, ये तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप मैंने किया है कि, एक मिनट देखता हूँ। अगर है तो अपन ऐड कर सकते, एक मिनट, हाँ। नहीं तो अपन एक ग्रुप भी ऐड, इसको कैंसिल करता हूँ ठीक है, मैंने। मतलब रिमूव करना है तो हाँ, यहाँ से मैं एक रिमूव। मिनट तुमको समझाता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ। अ, मैंने, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं
एक ग्रुप बनाता हूँ बेटर तुम्हारे को समझाने के लिए। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ठीक है। ये हाँ सिक्योरिटी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना है। सिक्योरिटी मतलब एक्सेस रिलेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो मेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये कर दिया मैं, यहाँ पे है। अभी मैं तुमको ये ऐड करता हूँ इसमें, कहाँ से, यहाँ से। मतलब तुम्हारे साइड से भी कर सकता हूँ, ग्रुप में भी जाके कर सकता हूँ, ये तो पता है ना आपको, समझ गए ना? मतलब मेरे साइड नहीं, मतलब। मतलब तुम्हारे साइड में तुम्हारा यूजर फाइंड करूंगा, ये ग्रुप हाँ ऐड हाँ करूंगा। वहाँ से, हाँ हाँ अभी हाँ। समझ लो, तुम्हारा इसमें ही रहेगा हर्षल, मतलब फ्रॉम ग्रुप साइड से, नहीं तो यूजर साइड से, दोनों साइड से। मैंने वो दूसरा वो में है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे तुम्हारा मेंबर, यहाँ पे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है वो, ऐसा टाइप किया मैंने, आ गया, ये किया, अप्लाई किया, ये राइट, ओके, ठीक है। हाँ। अभी हमको एक्सचेंज में देखेंगे वो ग्रुप रिफ्लेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। अभी मतलब आपको, वो डीएल इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं क्रिएट। हाँ हाँ, मतलब ग्रुप्स को पे जाके तुम्हारा नाम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट एक्सेस करके ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब ऐड और रिमूव के लिए आएगा आएगा, हाँ बाकी के फीचर में डेलीगेशन और वो इधर से आएंगे। हाँ हाँ, ऐसा ये है। डेलीगेशन का, यहाँ पे आपको डेलीगेशन पता है ना, सेंड एज रहता है, सेंड हाँ बिहाफ रहता है, फुल मेल। सेंड एज मतलब सेम एज इट इज, जैसा मेरे पे आपको एक्सेस है तो मैं ही भेजूँ ऐसा, आप भेज रहे बट मैं ही भेज रहा हूँ ऐसा लगेगा। सेंड ऑन बिहाफ पे क्या रहेगा, मेरा मेल बॉक्स से आप भेज रहे, सेंड फ्रॉम हर्षल बट मेल बॉक्स इज द हाँ। मुस्तफा, ऐसा रहेगा, ठीक है। सेंड वन भी अब, अच्छा हाँ, हाँ। सेंड ऑन बिहाफ का और सेंड एज, ये सेंड ऑन बिहाफ और सेंड एज दोनों एट ए टाइम नहीं रहेंगे एक्सेस, या सेंड एज रहेगा एक, नहीं तो सेंड ऑन बिहाफ रहेगा, ये दोनों में एक कौन सा तो आपको एक्सेस उस पर लेना है, जिसपे भी। अभी जैसा पीए है, मैनेजर का क्या करती है वो, नॉर्मली मेल्स रिप्लाई करती है, या सेंड एज कर सकती है या सेंड ऑन भी, नॉर्मली सेंड एज ही रहता है, क्योंकि सामने वाले को लगे कि वो मैनेजर ही रिप्लाई कर रहा है, सेक्रेटरी रिप्लाई नहीं कर हाँ। रही, ऐसा लगना चाहिए। डिपेंड है, अगर उसका रिक्वायरमेंट अगर नहीं सेंड एंड बिहाफ कराना है तो सेंड एंड बिहाफ भी करा सकता है, उस सेंड एंड बिहाफ का एक्सेस रहेगा उसको। अगर नहीं सेंड एज है तो सेंड एज में। और दूसरा ऑप्शन है फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मतलब नथिंग बट अपना ओनर ही है, मतलब मेरा मेल बॉक्स पे आपको फुल एक्सेस है, तो आप मेरा पूरा सेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं एज ए। आपका एक नीचे आपका मेल बॉक्स नीचे जो रहता है वहां पे हर एक मेल बॉक्स मैप होएगा सर आउटलुक क्लाइंट। वो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ना, आउटबुक पे, आउटलुक में इनबॉक्स पे, मतलब फोल्डर्स पे राइट क्लिक करके वो ऐड शेयर फोल्डर करते हैं, तो वहाँ से मतलब वो क्या रहेगा, सेंड ऑन भी आपका ही वो रहेगा परमिशन, तभी ऐड शेयर फोल्डर कर सकते हैं, ऐसा हाँ, है वो ना। भी कर सकते हैं। और जब टू में डालते हैं ना, वहां पे ऑप्शन आएगा एक और एक, तुम्हारे को किसका एक्सेस वहां पे फ्रॉम। अभी सेंड एंड बिहाफ मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, तुम्हारा आईडी आएगा वहां पे फ्रॉम में, क्योंकि मतलब अगर हम ऐड शेयर फोल्डर करते हैं तो डायरेक्ट वो नीचे ऑटोमेटिक फोल्डर जनरेट हो जाता है, हाँ, ठीक है। फोल्डर जनरेट होगा, और वो राइट, हाँ। उधर अकाउंट पे क्लिक करके ऐड अनदर मेल बॉक्स हाँ करते हाँ, हैं, तो उसके लिए हमें फुल एक्सेस देना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली, वो हाँ एग्जैक्टली, ऐसा हाँ, है। फुल एक्सेस रहेगा तो आपको ऐड अनदर अकाउंट करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेलीगेशन का हुआ। तो हम इसको रिफ्रेश करके, वो अगर कभी कभी होता है, मेंबर ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली दिखना चाहिए, अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रुप नाम आना चाहिए रिफ्लेक्ट, बट यहाँ पे अपना हुआ है, यहाँ पे हमने ऐड किया है, बट आएगा थोड़े टाइम में, अपन उसके बाद में अपन देखेंगे उसको, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूजर मेल बॉक्स का हो गया, करेक्ट, समझ गए। हाँ अभी अपने को उसके बाद ग्रुप्स में अपन ये करेंगे,
ये थोड़ा क्रैश हो रहा है। ग्रुप्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ही जो अपने अभी क्रिएट किए ना, वो ही ग्रुप जैसा मेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं, मतलब मल्टीपल एचआर का कुछ है, अपना एडमिन का कुछ है, टेक्निकल टीम का भी तुम्हारा ग्रुप रहता है ना, सिक्योरिटी ग्रुप, 8-10 लोग है तुम लोग, तो ये ग्रुप क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे एक्चुअली वो क्रिएट नहीं हुआ हो, यहाँ पे अपने को करना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने एक ग्रुप हाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मतलब टेक्निकल टीम बोल के कुछ भी, TCSNI टेक्निकल टीम एलियास कंटिन्यूशन, आपको मालूम है स्पेस अपने को नहीं आना चाहिए, टेक्निकल टीम कंटिन्यू रखा मैंने, नोट फॉर टेक्निकल टीम कुछ भी, टीम यूज, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कहाँ पे भी आप जिधर आपको बनाना है ग्रुप बनाओ, यूजर में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट अपने को देना है कहाँ पे, ओनर अपने को किसको भी बना सकते हैं, मैंने ऑटोमेटिक ले लिया अभी, जैसा कि तुमको भी बना सकता हूँ मैं ओनर, तो ग्रुप मैनेज करने के लिए हर्षल, क्योंकि जब ग्रुप बनता है तो आपको पता है ना कि मैं ओनर होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो हर टाइम हमारे पास ही आएगा, ऐड करो रिमूव करो, अगर मैं किसी ओनर को देगा तो वो यूजर को ऐड एंड रिमूव करते रहेगा जिसका भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, करेक्ट। हाँ ये ग्रुप अभी ओनर हमने बना दिया। अभी हम यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऐड भी आप करना है, तो मैं समझ लो हर्षल को मैंने ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, open, anyone can join this group without being approved by the group owner, closed, member can be added only by the group owner, all requests to join will be rejected automatically, owner approval, all requests are approved or rejected by the group। तो दो टाइप का होता है, एक क्लोज होता है एक ओपन होता है। क्लोज मतलब आपको जो भी ओनर है वो आपको ऐड करेगा रिमूव करेगा, अगर आपने रिक्वेस्ट भी भेजा तो वो अगर अप्रूव करेगा तो ऐड होंगे, राइट। तो अगर वो रिक्वेस्ट मतलब कैसे समझ, अच्छा मेल करना पड़ेगा उनको। हाँ मेल करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा, वो मेल कि ये इसमें इस मेरे को ऐड करो। क्योंकि यूजर को तो हम डीएल डालते हैं तो डीएल पे क्लिक कर मतलब सर्च करते हैं, तो उसमें तो हमें ग्रुप ओनर समझ में नहीं आता ना कौन है उसका। नहीं डायरेक्ट ग्रुप मेल अभी मतलब हाँ, आउटलुक से ओपन करते हैं तो। करेक्ट करेक्ट। अभी कैसा होता है, अभी एग्जांपल तुमको देता हूँ, अभी ये टेक्निकल टीम का मैंने ग्रुप बनाया, तो हाँ आप अभी नया बंदा आया, ठीक है, हाँ या तो उसने रिक्वेस्ट डालता है, नहीं तो तुम्हारा टेक्निकल टीम का ओनर जो है उसको पता है कि ये नया बंदा है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है, करेक्ट। हाँ हाँ। ये नॉर्मली ऐसा ही होता है टीम में, जैसा कि हमने नया कहीं क्योंकि पे जो, वो हमें हमें रिक्वेस्ट आते हैं ना कि वो बहुत सारे मतलब ऐड रिमूव के लिए, हाँ तो मतलब वो तुम कब हाँ आते हैं कि तुमने उसको ओनरशिप नहीं दिया है, ओनरशिप अगर देंगे वो परमिशन उसको, अभी जैसा समझ लो तुम एक ग्रुप का ओनर है, एक एग्जांपल पकड़ कर चलो टेक्निकल टीम हाँ का, आपका पास बंदे जैसा आता है कोई, आपको ही पता है कौन हाँ आया और कौन छोड़ कर गया, ठीक है ना, तो आप वहां से हाँ रिमूव और ऐड कर सकते हैं ना, आउटलुक क्लाइंट से ऑप्शन आता है वो, हाँ यस राइट। तो वो हिसाब से अगर अपन ओपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी ऐड होएगा, फिर मेरे को मालूम पड़ा ये कुछ तो एक ग्रुप है एग्जांपल, उसको मैंने ऑटोमेटिक खुद को ऐड करूंगा, फिर खुद को कभी भी रिमूव करूंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए हम क्लोज हाँ रखने से क्या हो जाएगा, मतलब मेरे को पता है किसको मैं ऐड कर रहा हूँ और किसको रिमूव कर रहा हूँ, करेक्ट ना। हाँ तो अपने को ओनर दे देने का, एक ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको भी देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो भी वो वो ऐड एंड रिमूव करेगा अपना टीम में, जो भी उसको ही पता रहेगा किसको रखना है किसको नहीं, वो प्रॉपर ग्रुप में मेंबर्स रहेंगे, नहीं तो फिर किसी को, नहीं तो ये तो वो बंदा अगर वो नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, कुछ इश्यू है, तो फिर टेक्निकल टीम को बोलेगा ये ग्रुप में इसको ऐड करो या इसको रिमूव करो, तो टिकट रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगा, तुमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ये टास्क, राइट। हाँ। उनको तो समझ में भी नहीं आता हाँ ओनर बहुत कौन है लोग ऐसे मतलब। रहते हैं, उनको एक्सेस रहेगा तो भी नहीं करना, बोलेगा मेरे को नहीं आता, सिंपल एक टिकट रेज करेंगे, इसको ऐड करो 10 लोगों को निकालो, तो उनका काम हाँ ये हमें बन टिकट करते हो। गया। हाँ ऐसा और वो और तो, डीएल पे क्लिक करने के बाद सर्च करते हैं ना आउटलुक में, हाँ वहाँ पे भी मतलब वो ऑप्शन नहीं आता ना वो कौन ओनर है, सिर्फ मेंबर ही आते हैं ना। हाँ राइट राइट, उसके लिए वो प्रॉब्लम आता है। बट कभी कभी बहुत लोगों को मालूम रहता है, डिपेंड करता है कौन कैसा है उसके ऊपर जाता है, अगर बहुत लोगों को हमने देखा है कि मालूम रहता है वो लोग मैनेज कर पाते हैं, अगर कोई नहीं मालूम रहता वो लोग ऐसा रिक्वेस्ट रेज करना शुरू करते हैं, ये ऐड करो इसको निकाल दो उसको निकाल दो, ये आते रहते टिकट ऐसे।
तो अभी दूसरा ऑप्शन है चूज वेदर द ग्रुप इज ओपन और लीव। मतलब कभी कभी होता है ना ओपन, कोई भी अपना अपना खुद को निकल जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो ग्रुप में जिसको मेल भेजते हैं वो नहीं मिलेंगे उसको, तो उसके लिए उसको भी वो रिस्ट्रिक्शन करना है, वो खुद ही नहीं रिमूव हो सकता है, वो उसका ग्रुप का ओनर उसको रिमूव करेगा तो रिमूव होना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो ये कंडीशन में नॉर्मली रिकमेंडेड है, क्लोज रहना चाहिए। तो क्या है अपने को पता चले ग्रुप ओनर को। तो हमने मेंबर ऐड किए क्या इस डीएल में? हाँ ये ऐड किया मैंने, तुम्हारे को ऐड किया, मैं देखता हूँ यहाँ पे आया क्या। तुमको खुद को ऐड किया, अभी दिखाना चाहिए, लेट्स सी, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, मेंबर ऑफ में अपने को यहाँ पे दिखाना चाहिए, आ गया ना टेक्निकल टीम ग्रुप, हाँ यस। राइट। तो ऐसा ही वो मोर देन वन ग्रुप्स रहेंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इस पे डबल क्लिक करके कुछ नहीं आएगा ना? अच्छा एक मिनट देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं आप उनको ट्राई करेंगे, जो क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, डबल क्लिक कर रहा नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप दैट हाँ इंक्लूड्स दिस रिसिप्टेंट, मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में ये रिसिप्टेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप दैट इंक्लूड्स दिस रिसिप्टेंट, मतलब ये ग्रुप में जो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं ना वो ग्रुप में ये मेंबर है, इतना ही इसका मतलब है, करेक्ट। अच्छा। वहां पे आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, पढ़ के आप देख सकते, ठीक है। हाँ तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो अपने को ग्रुप का भी पता चले। अभी हम रिसोर्स मेल बॉक्स में आएंगे, आपको सर, पता है ना वन मिनट रिसोर्स। वन मिनट। हाँ बोलो बोलो, हाँ ग्रुप्स में जाइए ना, एक ग्रुप में मिनट, जाओ, ग्रुप्स में जाइए ना फिर से। हाँ हाँ, ठीक है, देखो आप डबल डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक करो। ग्रुप पे। हाँ, तो मेल बॉक्स डिलीवरी कुछ तो ऑप्शन रहता, हाँ डिलीवरी मैनेजमेंट, तो बताइए हाँ ना सर। ओके, ये मिस हुआ क्या अपना, अच्छा एक ग्रुप में, ओके। अच्छा ग्रुप का प्रॉपर्टीज हमने ओपन नहीं किया, ओके। ये हाँ, डिस्प्ले नेम अलियास नोट्स आया, ये तो जनरल ओनरशिप टैब अपन, ओनरशिप किसको किसको मैंने दिया यहाँ पे आया, मेंबरशिप जिसको जिसको हमने ऐड किया ये मेंबर्स है, मेंबरशिप का अप्रूवल हमने क्लोज ही किया, वहां पे हमने अच्छा किया, अच्छा, मेंबरशिप में जाइए फिर से, ओके। ऊपर ऊपर, हाँ। ओके, तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ना, हाँ रिमूव मतलब कर वो सकते हैं ना, अभी ये देखो रिमूव किया मैंने, ऑफिस रजिस्ट्री का ग्रुप, हाँ कौन सा हाँ भी ग्रुप रहेगा तो हाँ हाँ हाँ, यहाँ से कर सकते, ये इधर से भी ग्रुप में कर जाके सकते हैं, कर इधर सकते, से बट भी। यूजर के इसमें जाके नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि हमने ग्रुप में यहाँ पे आ गए ना, ग्रुप से रिमूव कर सकते आप, बट यूजर में अंदर जाके एडी से कर सकते आप, बट यहाँ पे एक्सचेंज में नहीं कर सकते। क्योंकि मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता, बहुत बार ये हमारे योल्टो वाले क्या करते हैं, तो ग्रुप से निकालते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं यहाँ से नहीं होगा, ईडी से करते हो, इसलिए थोड़ा सा हाँ समझ नहीं, में नहीं आता यहाँ से ऐसा क्यों। ग्रुप अगर आपको पता है ना, ग्रुप से आप रिमूव कर सकते हैं। अभी ये ग्रुप में है राइट अपन, अभी देखो हमने रिमूव किया, ये गया होगा, क्योंकि एडी में और ये वो सेम, देखो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है राइट। हाँ मैं हर्षल को और ऐड करता हूँ, एक्सचेंज में ऐड और रिमूव कर सकते, बट ग्रुप से कर सकते, यूजर से आप एडी में ही कर सकते, राइट, बट वहां पे दो हाँ, ऑप्शन है, मतलब अच्छा। समझ गए ना। हाँ तो हाँ। मैंने अभी देखो ये किया, राइट, ये सेव हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, होने दो उसको सेव। मैंने और ग्रुप डाल, अगर एडी में ग्रुप डालेंगे सब, ऑफिस रजिस्ट्री पहले ग्रुप तो नहीं आएगा उधर एडी में, नहीं लेकिन आएगा, डीएल क्रिएट, दो डीएल ही क्रिएट आएगा करते ग्रुप, हैं तो। एक सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आएगा एडी में, अच्छा, ऑफिस तो उसमें 365 ग्रुप एक्सचेंज ऑनलाइन में आएगा। ओके, मतलब अगर डीएल पे क्लिक सर्च करते हैं हम एडी में, और हाँ वहां से भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, और हाँ यहाँ मतलब पे भी, यहाँ से भी वहां अभी से भी रुक, कर सकते हैं, और हाँ इधर सर्च करके वहां से भी यहाँ उसे से भी कर मेंबर ऑफ। सकते, एग्जैक्टली हाँ दोनों कर सकते, तो ऑप्शन है तुम्हारे ग्रुप से। ठीक है क्लियर, यहाँ पे ग्रुप में कुछ और कुछ डाउट वो है। डिलीवरी मैनेजमेंट तो, हाँ एक मिनट उसको ना, डिलीवरी मैनेजमेंट का, वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैंने वो नोट करके रखे थे वो। हाँ हाँ, चलेगा, इसलिए देखो मैंने आपको पूछा। यहाँ पे डिलीवरी मैनेजमेंट, तो किस तरह डिलीवरी कराना है तुमको, ओनली सेंडर इनसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन
सेंडर्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको पता है ना नॉर्मली डीएल जो रहते हैं वो इंटरनल के कम्युनिकेशन के लिए रहता है नॉर्मली, 99%, 1% सिर्फ हम कभी कभी एक्सटर्नल को भी इन्वॉल्व करते, करेक्ट ना? हाँ तो वो है by default only sender inside your organization can send message to this group. You can also allow people outside the organization to send to this group. Choose one of the below. ओनली इनसाइड हुआ ए सेंडर इनसाइड और आउटसाइड, और यहाँ पे आपको ऐड भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन सेंड मैसेज टू द ग्रुप, ऐड यूजर्स और ग्रुप to the list below. Only the specified senders will be able to send to the group and mail sent by anyone else be rejected. देखो यहाँ पे है ना वो ऑप्शन, आप अगर मैं हर्षल को डाला, हर्षल ये भेजेगा तो वो बाकी के लोगों का मेल को रिस्ट्रिक्ट करेगा वो, समझ गए? अच्छा। हाँ हाँ, ये मतलब मैं भी डिलीवर, भेज पाऊंगा, बाकी कोई हाँ नहीं भेज हाँ, पाएगा। ये मतलब आप ही भेज पाएंगे। अभी एचआर का रहता ना नॉर्मली, आप सब लोग भेज सकते क्या? नॉर्मल यूजर नहीं भेज सकते, एचआर ही भेजता है। तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट हाँ करते हैं वो लोग एचआर के लोगों का या ग्रुप का। यहाँ पे अब ग्रुप भी डाल सकते हैं, मैं टेक्निकल टीम अगर तुमको भेजना है, टेक्निकल टीम को पूरे को मैंने सर्च करके ट्राई करेंगे, लेट्स सी। देखो टेक्निकल टीम ग्रुप, ये टेक्निकल टीम हमने किया है ना, ग्रुप यही है ना, ये ऐड हाँ। किया मैंने, तो टेक्निकल टीम भी ऐड होगा। तो इसका मतलब टेक्निकल टीम में जो भी बंदे हैं वो सब भेज सकते हैं। और वैसा ही मैसेज अप्रूवल में क्या है वो? एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे वो मैसेज अप्रूवल मतलब डेलीगेशन टाइप का है। अगर किसने तो तुमने भेजा, तुमको एक्सेस नहीं है तो वो क्या बोलते हैं अप्रूव करेगा भेजने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक जाएगा। वो है, एक मिनट बताता हूँ अभी। मतलब अभी मैसेज सेंड टू दिस ग्रुप हैव टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर मॉडरेटर, मतलब अभी मेरे को एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको भेजा हाँ तो मॉडरेटर को इन्फॉर्मेशन आएगा कि ये मैसेज अगर अप्रूव करेगा तो वो डीएल को जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा तो नहीं जाएगा। इसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। इफ यू मतलब डोंट मॉडरेटर सेलेक्ट, मतलब कोई भी किसका भी आईडी डाल सकते हैं, मतलब हमारे हाँ डीएल अभी में जो जैसा कि मेंबर तुम है। ओनर है ये ग्रुप का हाँ एग्जांपल, तो तुम अभी मैंने भेज रहा हूँ, मैं एक ये हूँ, मतलब मेरे को भेजना है, कुछ रिक्वायरमेंट है कि मैं एक मेल भेजना है, तो तुम देखेंगे कि ये एक्चुअली रियली इसको भेजना चाहिए नहीं चाहिए, भेजना चाहिए। अगर भेजना हाँ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, अप्रूव वहां पे आएगा मेल में, अप्रूव करेंगे तो मेल हाँ जाएगा वो डीएल को, अगर रिजेक्ट करेंगे तो नहीं जाएगा। इसका हाँ मतलब है हाँ। मॉडरेटर हम बोलते हैं इसको। यहाँ पे है देखो, इफ यू डोंट सेलेक्ट ए मॉडरेटर द ग्रुप ओनर वो विल मतलब रिव्यू। वो उसको मेल आएगा क्या, मतलब उसको हाँ हाँ, मेल नोटिफिकेशन आएगा, मतलब तो उसको अप्रूव करो ऐसा? अप्रूव, हाँ अप्रूव करो या रिजेक्ट करो, अच्छा। ऐसा मेल आएगा। तो ऐसा, अभी यहाँ पे वो भी एक दूसरा ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ऐड भी कर सकते, किसको अप्रूवल भी नहीं चाहिए। तो अगर समझ लो किसी एक बंदे को यहाँ पे ने ऐड किया, जैसा मेरे को यहाँ पे ऐड किया एग्जांपल, हाँ तो इसका अप्रूवल भी, अगर मैंने एक ये मेल बॉक्स को मैंने ऐड किया, इसको अप्रूवल भी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आपने भेजेगा तो इसको लिस्ट कर सकते हैं अपन, वो अप्रूव होके निकले। यहाँ पे देखो, सेंडर्स हु डोंट रिक्वायर्ड मैसेज अप्रूवल, अप्रूवल जिसको नहीं चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो उसको, एक दो तीन लोगों को आप चाहिए कि भेजना है, वो हमेशा भेजते रहते हैं आपके बिहा पे, तो ये ऐड कर सकते हैं। ये भी मॉडरेटर अगर चाहिए तो अप्रूवल आएगा, नहीं तो यहाँ पे ऐड कर दो, इसको अप्रूवल नहीं आएगा, सीधा ये भेज पाएगा क्योंकि हमने वो लिस्ट में ऐड किया है, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, अब मैसेज अप्रूवल करा, समझे? तो मतलब वो उनको तो डायरेक्ट तो पहले जनरल में वो टैब था वहाँ पे भी ऐड कर, हाँ वो तो वहाँ पे भी सेम ही ऐड हो गया कर ना सकते हैं फिर? आप, हाँ वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिलीवरी में सेम ही है ना ये, मतलब सेम ही ऐसा टाइप का? है, सेम ही है। वहाँ हाँ पे एक्सेस देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बट हाँ। इसने एक दोनों दिया है, एक अप्रूवल के लिए दिया है, नॉन बिना अप्रूवल के भेजे, तो ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर काम करता है वो, बट ऑप्शन दिया है उसने। तो अभी ईमेल ऑप्शन में आपका जो भी हमने ईमेल एलियास दिया वो ईमेल बन गया, एड्रेस। मतलब और इधर एक से सेकेंडरी और वो डाल सेकेंडरी, वो सकते हैं। मैं बोला ना ऑफिस 360 का मेरा इंटीग्रेशन है, उसके लिए वो सेकेंडरी स्टैम्प हो रहा है, नहीं तो नॉर्मली एक ही होता है, ठीक है? तो हाँ मेल टिप्स तो पता है आपको, जैसा ये कुछ ग्रुप डालते हैं तो अपने को आता है ना, एक डिस्प्ले होता है आउटलुक में, इट इज एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, ये ऐसा कुछ तो आता है ना, वैसा ही ये मेल टिप्स। डिस्क्लेमर। हाँ डिस्क्लेमर जैसे में थोड़ा आता है, ऊपर टिप्स जैसा ये करे तो ये हो सकता है तुम यहाँ पे कुछ भी डाले, दिस इज ए टेक्निकल टीम ग्रुप, ऐसा क्या भी डालेगा तो ये ग्रुप सेलेक्ट करेगा ना, ऑटोमेटिक वो यूजर को आएगा ये टेक्निकल ग्रुप का, ऐसा बोल के इन्फो वहाँ पे एक टिप्स दिखाएगा, कॉन्टेक्ट में उसको हाईलाइट करेगा बस, मतलब इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लेमर नाम आएगा और उसके आगे आएगा क्या है? हाँ हाँ वो ये अलग है? आएगा वहाँ पे, हाँ राइट, ठीक है। तो ये वो टिप्स है।
अभी एक ग्रुप डेलीगेशन भी है, आप किसको दे सकते हैं, और वो बिहाफ में सेंड है आज सब है सेम। देखो सेंड एंड बिहाफ है, सेंड एज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस ये लोगों ने दिया है, डेलीगेशंस दिया है, किसको भी देना है एक्सेस तो दे सकते हैं, सेंड एंड बिहाफ दे सकते, सेंड सेम जैसा यूजर मेल बॉक्स है वैसा ही ये भी इसमें एक्सेस दे सकते हैं आप, उसी हिसाब से काम करेगा। क्लियर है ग्रुप का, या कुछ और डाउट है आपको कहीं पे? नहीं नहीं क्लियर नहीं है। ना, ठीक है। तो हायर टाइम आपको और थोड़ा 10-15 मिनट, या क्या प्लान है? ले लेते सर ब्रेक, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट है मेरा 7 बजे का, हाँ, इसलिए तो कल हम कंटिन्यू कल। करेंगे। हाँ ठीक है। ये रिसोर्स नहीं तो रिसोर्स मेल बॉक्स ये करके करेंगे, नहीं तो चलेगा, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे, छोड़ दो, हाँ ठीक है, ठीक हाँ। तो ठीक। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ तो आज अपन कल, और यही मैं 8:30 या 9 बजे तुमको बताता हूँ, वो हिसाब से करेंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक। ओके चलो, इसी ओके टाइम पर। थैंक्स, चलो ठीक, बाय। थैंक यू।